peritoneal fold and their disposition. Here in light blue color, what we are seeing is the posterior abdominal wall. This is in light blue color. This is posterior abdominal wall on which the gut and the viscera, all this rest on. This net-like structure, this is peritoneal fold. This is peritoneum. When it lies over the posterior abdominal wall or anterior or lateral abdominal wall, it is known as parietal peritoneum. When it lies over the viscera, it is known as over the viscera, that is visceral peritoneum. And when it is suspending, just suspending and give anchorage, then it is known as peritoneal fold. At first, in the embryonic period, it is just a straight tube like this. And this peritoneal cavity, it is a blind serous sac. It is closed from above downwards, from all where. It's just like a balloon. And all the structures, that gut tube and the viscera, all are just outside. We can touch it. Okay? We can touch just outside the closed serous sac. And now, with the time, it just suspended within, it seems that it is suspending within the serous cavity like this. Okay? And that match of peritoneum which is used up for suspending is known as peritoneal fold, and where it is attached is the parietal peritoneum, and where it inseeth the viscera is known as visceral peritoneum. With the time, in the embryonic period also this is suppose gut. This in dark maroon color, this is gut and this is peritoneal fold. All has got, this whole gut tube has got peritoneal support from back side. Okay? But with the time, due to the gravity, it just the peritoneal fold, the approximate surface will get fused, and this process is known zygosis. Zygosis. And the reason why some structure looks that it is adhered and some seems suspending. Actually, all are extraperitoneal. But when it looks suspending, whose peritoneal fold do not get reabsorbed by the zygosis process is intraperitoneal, and one which is get adhered like this is known as retroperitoneal organ. Okay. Now, in esophagus, here this is esophagus, only lower part has got some peritoneal fold near the stomach. In the stomach, at the level of stomach, very peculiar, ventrally as well as dorsally. This is ventral aspect and this is the dorsal aspect, suppose. So, there is ventral mesogastrium and this is dorsal mesogastrium. After that, duodenum is fully fixed. Okay? Except initial 2 centimeter of the first part of the duodenum. Okay? Now, after that, this is ileum plus jejunum. Okay? Small intestine, duodenum plus jejunum plus ileum. Jejunum and ileum has got very large peritoneal fold which is known as mesentery. After that, this is cecum and here is the appendix, and a few small peritoneal fold is there, that is known as mesoappendix. Now ascending colon and descending colon all are get adhered to the posterior abdominal wall. But in the middle, this is transverse mesocolon, this is transverse colon which has got peritoneal fold which is known as transverse mesocolon. And the sigmoid region as sept, it has also got peritoneal fold which is known as sigmoid mesocolon. And then here is the rectum like this. Okay. Now I am giving you the concept of lesser sac and greater sac. What is greater sac?
all inside the peritoneal cavity, inside the abdomen. In the thorax there are two cavities, pleural cavity and the pericardial cavity, we all know. And in the abdomen as well as in the pelvis there is one common peritoneal cavity. So whole of the cavity is known as greater sac. And due to the disproportionate growth of the stomach and rotation, one cavity is enclosed within it. So lesser sac is the component, is the constituent of the greater sac. And just look at how the development occurs. This is ventral mesogastrium in front, and on the dorsal aspect this is dorsal mesogastrium in front of the stomach and back side of the stomach. Okay. Now liver bud develop in the ventral mesogastrium, and then it divide the ventral mesogastrium into two parts. Ventral segment of the ventral mesogastrium, and this is dorsal segment of the dorsal mesogastrium. Ventral segment of the ventral mesogastrium is known as falciform ligament, whereas the dorsal segment of the ventral mesogastrium is lesser omentum, through which it is connected to lesser curvature of the stomach. Now coming to dorsal mesogastrium, again with the development of spleen and kidney. The spleen, this dorsal mesogastrium, the ventral segment and dorsal segment again. Now the ventral segment develop into gastrosplenic ligament, gastrophrenic and greater omentum, and dorsal part of dorsal mesogastrium develop into lienorenal ligament. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ना, स्प्लीन और स्टमक के बीच में, वो ऊपर से नीचे गैस्ट्रोफ्रेनिक, देन गैस्ट्रोस्प्लेनिक, दिस वन इज गैस्ट्रोफ्रेनिक, ये जो है ना जो डायफ्राम की तरफ जा रहा है, ये दिस इज गैस्ट्रोफ्रेनिक, यहाँ पे ये स्प्लीन बनाए हैं, ये स्प्लीन, इन दोनों के बीच में यहाँ गैस्ट्रोस्प्लेनिक हो गया, और ये बहुत ज्यादा इनलार्ज कर लिया, उसके बाद जो ग्रेटर कर्वेचर पे अटैच्ड है वो दिस इज ग्रेटर ओमेंटम. तो ये सब वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम से डेवलप हुआ है. अब इसका रोटेशन हो गया तो ये एक स्पेस इनक्लोज कर लिया, दैट इज नोन एज लेसर सैक. नाउ कमिंग टू बाउंड्री ऑफ लेसर सैक, इट हैज गॉट एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, जस्ट लाइक दिस, ऐसे है. हाँ, ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, यहाँ एंटीरियर वॉल हो गया, और एक गैप है जिससे वो ग्रेटर सैक से कम्युनिकेटेड है इस तरफ. हाँ, दैट इज फोरामेन ऑफ विंस्लो, और ये पीछे ऊपर यहाँ पे डायफ्राम से अटैच हो गया है एक सैक की तरह. ठीक है, तो इस एंटीरियर वॉल इट इज फॉर्म बाय द, यहाँ पे ये लेसर ओमेंटम है. लेसर ओमेंटम वी ऑल नो हैज द अटैचमेंट ऑफ एल, एल से लेसर ओमेंटम ऐसे. तो ये यहाँ पे द फीसर फॉर डक्टस वेनोसस, उससे जाके अटैच हुआ है. दो है इसका लेयर, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर. तो ऐसे नहीं कहते हैं इसको, राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब. हाँ, तो राइट लिम्ब बताए हैं, उस दिन बताए हैं राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब कि कैसे अटैचमेंट हुआ है. ये राइट लिम्ब हो गया इस तरफ, ये लेफ्ट लिम्ब हो गया लेसर ओमेंटम का, और दिस इज फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम. ये रेड कलर से जो दिखाए हैं, ये रेड कलर से. तो लेसर ओमेंटम का पोस्टीरियर लेयर जो है वो राइट लिम्ब से अटैच हुआ है. लेसर ओमेंटम का एंटीरियर लेयर जो है रेड कलर से, ये जो ये लेफ्ट लिम्ब से अटैच हुआ है ना. और उसी तरफ फिर पोर्टा हेपेटिस के ऊपर है, यहाँ पे ये पोस्टीरियरली और फिर एंटीरियर. यहाँ पे राइट लिम्ब लेफ्ट लिम्ब है, यहाँ पे पोस्टीरियर एंटीरियर हो गया है, क्योंकि इस तरीके से है ना, एल शेप का हो गया है. ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेसर सैक का बाउंड्री. एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय, ये दो लेयर है, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर. पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम, ऐसे है ना,
यहाँ पे अटैच हो गया। तो अगर हम यहाँ से एक उंगली घुसाते हैं तो कौन पड़ रहा है सामने में? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम, है ना। इसका एंटीरियर एस्पेक्ट में बीच में नहीं घुस रहे हैं हम, पीछे में है। तो ये हो गया पहले। उसके बाद हो गया विसरल पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक। ये आ गया। यहां से उंगली घुसा रहे हैं, यहां से घुसा रहे हैं, अभी दिखा देंगे वहां पे फोरामेन ऑफिस लो। तो ऐसे घुसा रहे हैं तो पहले बन गया, मिल गया पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम। देन कम विसरल पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक। उसके बाद कौन आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो, ग्रेटर ओमेंटम का 4 लेयर हो गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फिर वही फिर से फोल्ड हो गया है, फिर फर्स्ट लेयर ही 4th लेयर बन गया है और सेकेंड लेयर ही 3rd लेयर बन गया है। कोई भी चुनी वैसे करोगी तो वैसे ही हो जाता है। तो अब उसके नीचे क्या आ रहा है, क्या कंटिन्यूअस है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड लेयर, है ना। तो ये बना दिया एंटीरियर वॉल। अब बन जाते हैं पोस्टीरियर वॉल पे, लेसर सैक का पोस्टीरियर वॉल। लेसर सैक पे बहुत शॉर्ट नोट्स आता है, उसका बाउंड्री लिखना होता है। तो अब पोस्टीरियर वॉल फ्रॉम इंफीरियर एस्पेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द 3rd लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, है ना, दिखाई दे रहा है। फिर ऊपर आ गए और यहाँ पे भी पेरिटोनियल फोल्ड मैंने पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक बेड, यहाँ पे पैनक्रियाज है, गैस्ट्रिक बेड है, यहाँ पे ट्रांसवर्स में जो क्लोन सब जो जितना भी गैस्ट्रिक बेड का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से पेरिटोनियल फोल्ड आ रहा है। तो ये पोस्टीरियर वॉल बना दिया, ठीक है, इतना तक हो जाएगा। अब एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल हो गया। अब इसका बॉर्डर बताना होता है, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द अप्रोक्सीमेशन ऑफ फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 लेयर। ये दोनों ना रखे रखे ऐसे सट जाता है, ऐसे नहीं तो ओपन रह जाएगा ना, यहाँ पे से ओपन रह जाएगा। तो ये दोनों ऐसे ऐसे बोले ना, जैसे परा परा जैसे सट जाता है, जिसको जायगोसिस कहते हैं, सारा वैसे ही रेट्रोपेरिटोनियल हो गया है उसी तरह, ग्रेविटी से रखे रखे। तो ये भी सारा ही लेयर आपस में सट गया है, तो एक थैला की तरह हो गया है। तो राइट मार्जिन हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट मार्जिन it is closed due to the approximation of all the 4 layer of the greater omentum. Then इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ड्यूोडेनम है, ये ड्यूोडेनम है ना, ये इसके जस्ट ऊपर, और यहाँ पे सी से ड्यूोडेनम के बीच में यहाँ पैनक्रियाज गया है। तो ठीक यहाँ पे नेक और पैनक्रियाज है। तो यहाँ पे था पेरिटोनियल फोल्ड, वहां अच्छे से दिख रहा है पेरिटोनियल फोल्ड कनेक्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम एंड नेक ऑफ पैनक्रियाज, दिखा देंगे अभी। तो वो पड़ रहा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लीवर है, लीवर है तो यहाँ पे कॉर्डेट लोब है, इसके पीछे यहाँ कॉर्डेट लोब है। तो कॉर्डेट लोब पे जो विसरल पेरिटोनियम है वो डायफ्राम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे बन रहा है राइट मार्जिन। एंटीरियर वॉल हम लोग जान गए, क्या क्या जाने, ये लेसर ओमेंटम है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम, देन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, विसरल पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, देन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड लेयर, एंटीरियर वॉल बता रहे हैं, सेकेंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, उतना तक हो गया। नाउ पोस्टीरियर वॉल फ्रॉम बिलो अपवर्ड, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड लेयर। सब इमेजिन हो रहा है ना, सब तो दिखाई दे रहा है, सब इमेजिन हो रहा है ना, हाँ। तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड लेयर, उसके ऊपर आ गया पेरिटोनियम कवरिंग द गैस्ट्रिक बेड, इतना तक हो जाएगा एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। अब बताना होगा हम लोग को बॉर्डर। तो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, द अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑल द 4 लेयर्स ऑफ इन द राइट साइड, ऑल द 4 लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, वहां पे ये दोनों सब सट गया। फिर ऊपर आ जाते हैं, इससे ऊपर, तो यहाँ ड्यूोडेनम है, पेरिटोनियम कवरिंग कनेक्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम विद द नेक ऑफ पैनक्रियाज। इसके ऊपर आ जाते हैं द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉर्डेट लोब टू द डायफ्राम, एक पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन जा रहा है, वो उसका मार्जिन बना दे रहा है।
ठीक है। और यहीं पे बीच में फोरामेन ऑफ विंसलो भी पड़ रहा है। इस मार्जिन जो है यहाँ पे ये पूरी तरह से सटा हुआ नहीं है, यहाँ एक छेद है जिससे लेसर सैक और ग्रेटर सैक कनेक्ट हो रहा है। तो इसका बाउंड्री अब बताना होगा फोरामेन ऑफ विंसलो का, ठीक है, थ्रू विच ग्रेटर सैक इज कनेक्टेड टू लेसर सैक। तो इसके एंटीरियरली क्या पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे अटैच हो रहा है दोनों लेयर, तो एंटीरियरली पड़ रहा है राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। ये देखो लेसर ओमेंटम है, ये राइट फ्री मार्जिन है, और ये लेफ्ट वाला जो है ना, यहाँ लेसर का पीछे से अटैच, और यहाँ ऐसे ओसोफेगस देखो यहाँ पे नहीं है, इसके पास थोड़ा ही सा यहाँ पे पेरिटोनियल फोल्ड है, तो ये दोनों पूरा सट गया है। लेकिन यहाँ नहीं सटा है, यहाँ बहुत देखो, यहाँ बहुत जगह है घुसने के लिए अंदर। तो यही होता है राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। ये यहाँ से छेद बना रहा है अंदर जाने के लिए। तो एंटीरियरली फोरामेन ऑफ विंसलो इज बाउंडेड बाय राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। पोस्टीरियरली देयर इज इंफीरियर वेना कवा, अभी दिखा देंगे, इंफीरियर वेना कवा है यहाँ पे। बिलो देयर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडनम, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडनम है यहाँ पे। एंड सुपीरियरली देयर इज कॉर्डेट लूप, यहाँ पे कॉर्डेट लूप आ रहा है, ठीक है। तुम सोच रहे होगे कि यहाँ नीचे में तो क्वाड्रेट है, तो फिर कॉर्डेट क्यों आ गया? इस तरह से नहीं है, ऐसे है, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ रहता है थोड़ा सा लीवर, अभी देखोगे ना, यहाँ पे कॉर्डेट आ रहा है, फोरामेन ऑफ विंसलो। तो वो राइट मार्जिन में ही तुमको बताना होगा कि वहां पे एक गैप है और उसका ये बाउंड्री है। अब लेफ्ट मार्जिन में आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑल द फोर लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। फिर लीनो-रीनल लिगामेंट एंड देन गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, देन गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये सारा लिगामेंट यहाँ साइड साइड पे तो है, ठीक है ना। तो ये इसका मार्जिन बना रहा है। Inferior border, it is blind due to the continuation of first with the fourth and second with the third layer. बंद है ना, ये तो शुरू से ही बंद है, सटा भी नहीं है, शुरू से ही बंद है। ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर के बारे में। एंड सुपीरियर बॉर्डर यहाँ से डायफ्राम से कनेक्टेड है, पता है ना कि इस तरह से है, ऐसा पूरा ऊपर की तरफ। देखते हो कोई थैला ले जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो ऊपर पकड़ने वाला रहता है, ऊपर से खुला रहता है ना, तो उसी तरह वहां पे डायफ्राम से सटा हुआ है वहां पे। तो पेरिटोनियल रिफ्लेक्सर फ्रॉम द कॉर्डेट लोब टू द डायफ्राम इन द राइट साइड, और यहाँ पे फंडस ऑफ स्टमक से डायफ्राम पे गया है, वो सुपीरियर मार्जिन बना रहा है। अब बाकी ऐसा अटैच हो गया है वो सैक, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब चलो वहां पे बहुत क्लियर हो जाएगा।